Hello everyone. So in today's video we are going to cover a topic for your anthropology optional paper 1 as well as paper 2 and ये आपको archaeology as well as biological anthropology दोनों portions में ये topic आपको काम आएगा. So the thing in news is that ASI, which is Archaeological Survey of India, has transferred some Rakhigari skeletons to the Anthropological Survey of India for further research. So before going forward, I hope you know what Rakhigari is. It is a Harappan site. It is the largest known site of Indus Valley civilization, spread over 350 hectares, and it is located in Haryana. So यहाँ से हमें 3 complete skeletons excavate हुए हैं and उसके साथ साथ कुछ skeletal fragments का भी excavation हुआ है. What are skeletal fragments? जैसे कि skull, mandible, ribs in their incomplete forms. So in this way, this complete set of skeletons has been excavated from here. तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्केलेटन्स जो है वो हमें किसी इंसान की बायोलॉजिकल प्रोफाइल, जैसे कि उसका सेक्स क्या था, एज, द एंसेस्ट्री, इवन हिज लाइफस्टाइल की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कैसा था, कैसा डाइट था उस टाइम, और उससे हम ये भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल पैटर्न्स कैसे हुआ करते थे, क्रॉप पैटर्न्स क्या थे, किस टाइप का डाइट था, ऑक्यूपेशन क्या था, वर देयर एनी स्ट्रेस मार्कर्स प्रेजेंट इन द स्केलेटन्स, एंड देन हेल्थ, कि उस टाइम पे क्या ये डेथ्स जो है वो कोई डिजीज़ की वजह से हुई थी, इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, एंड फाइनली ऑल ऑफ दिस इट विल लीड अस टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी ऑफ राखीगढ़ी. सो द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्हें ये स्केलेटन्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कंडक्ट 3 मेजर एनालिसिस ऑन दीज स्केलेटन्स. So the first is osteological analysis. So what is osteological analysis? It is the study of bones. So within that, the first osteological analysis is going to be that of the skull. तो यहाँ से वो figure out करेंगे कि उस skull का cranial shape कैसा है, the breadth कैसी है, then nasal aperture कैसा है, jaw morphology and the placement of the mandible. Then the second is long bone. Long bone जो होता है वो हमारे limbs में present होता है, and the diagram here is of the femur, which is present in our thigh, but there are other long bones as well, such as the radius, ulna, and so on, and actually they are very important in indicating the height of the individual, body build कैसा था, then stature कैसा था, what was the type of locomotion that was being followed. And the third is pelvis. Pelvis is an important indicator of determining the biological sex of the skeleton. As we know कि अगर wider sciatic notch है तो that means it has female tendency, whereas narrower pelvis indicates male tendency. So the second analysis which ANSI is going to undertake is ancient DNA analysis. Now what is ancient DNA? ADNA is basically a highly degraded form of DNA which is present in the skeletons, and it is present in very very small fragments. उसका सबसे उसे टेस्ट करने का सबसे मेजर चैलेंज ये होता है कि इट इज़ वेरी हाईली प्रोन टू कंटामिनेशन फ्रॉम मॉडर्न डीएनए. मॉडर्न डीएनए एज इन द डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. सॉइल में कुछ प्रेजेंट हो सकता है, जो माइक्रोब्स है उसके अराउंड और अदर मॉलिक्यूल्स, उसमें जो भी डीएनए प्रेजेंट है उससे वो कंटामिनेशन हो सकता है. देन डिग्रेडेशन ड्यू टू मॉइस्चर एंड हीट. तो इसके वजह से ADNA एक्सट्रैक्शन भी काफ़ी एक स्किलफुल प्रोसेस होती है, एंड इट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम डेंसेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व्ड पार्ट्स ऑफ दो स्केलेटन्स. सो यूजुअली ADNA इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टीथ. देन पेट्रस बोन ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल बोन, ये एक्चुअली हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होता है. एंड द थर्ड इज बोन मैरो. वी नो बोन मैरो कंटेन्स ब्लड सेल्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ADNA. And ancient DNA is very very helpful in figuring out the ancestry of a particular population from that skeleton. Even the migration patterns कि उस society में in migration हुआ था, out migration हुआ था, किस तरह से intermingling हुआ था, and further you can also decipher the population admixture that might have happened. And finally the kinship rules कि exogamy, endogamy कुछ फॉलो करती थी वो सोसाइटी. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एक्चुअली कैन बी आंसर्ड थ्रू द ADNA analysis. For further example, I have also given you an example from a study which was conducted in 2019 in Rakhigadi itself. तो उस टाइम पे एक हरप्पन फीमेल का DNA एनालाइज किया गया था, and it was found that there was no evidence of later steppe pastoralist ancestry in that particular individual.
उसमें ये सजेस्ट किया गया कि इट एक्चुअली हैड इंडिजीनियस साउथ एशियन हंटर गैदरर एंसेस्ट्री एंड सम इरानियन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन एंसेस्ट्री. तो इसीलिए इट हैड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर द आर्यन माइग्रेशन डिबेट, क्योंकि बिकॉज यू नो कि ये डिबेट हमारी कंट्री में काफ़ी बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, एंड इट हैज सो दिस स्टडी एक्चुअली हैज़ implications on this as well. Also, I think कि ancient DNA has been a topic in your current affairs for some time now, and it can also be asked as a standalone question in your paper. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है कि उसका कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन करने का, एनालिसिस करने का. तो इफ़ यू गेट अ 10 मार्कर ऑन दिस टॉपिक, यू कैन ईजिली राइट इट, यू कैन गो थ्रू दिस. सो कैसे सैम्पल कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, पल्वराइजेशन, एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा. Okay, so the last third analysis which the ANSI is going to undertake is facial reconstruction. So as you know, what is facial reconstruction? It is the process of reconstructing the face from the skull using the principles of anatomy, anthropology, forensic science, modern imaging, computing techniques. इससे हम एक उस टाइम पे उस स्केलेटन का फेस कैसे होगा उसे हम डिवाइस करते हैं. सो पहले स्कल स्कैन किया जाता है, सिटी स्कैन्स होते हैं, देन क्रेनियोमेट्रिक मेजरमेंट्स लिए जाते हैं ऑफ द आई सॉकेट्स, द जॉ, चीक बोन्स, इस सब के. उसके बाद उसके ऊपर कुछ टिश्यू डेप्थ मार्कर्स मार्क किए जाते हैं, सो दैट यहाँ पे हम हमारे मसल्स को प्लेस कर पाएंगे. सी मसल मॉडलिंग. तो मसल्स को स्कल्प्ट किया जाता है इन पॉइंट्स के ऊपर, एंड देन फाइनली फाइनल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है बाय एडिंग द सॉफ्ट टिश्यूज एंड फीचर्स सच एज स्किन, लिप्स, ईयर्स. एंड व्हाट FRT कैन रिवील? FRT obviously it reveals the overall facial shape and proportions. Then particularly nasal shape and projections कैसे थे. हम पढ़ते हैं कि लेप्टोराइन, प्लेटिराइन, मीजोराइन, ये टाइप के कुछ नेजल टाइप्स होते हैं, एंड इट हेल्प्स अस टू फिगर आउट कि कैसे टाइप की पॉपुलेशन वहाँ पे इनहेबिट करती थी. देन चीक बोन प्रोमिनेंस कैसा है, जॉ लाइन, चिन शेप, मैंडिबल प्लेसमेंट. FRT कैन रिवील एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर कि स्किन कलर, हेयर कलर किस टाइप का होगा, ये FRT नहीं रिवील कर पाएगा. एंड इट फर्दर हैज़ एप्लीकेशंस इन फॉरेंसिक्स ऑब्वियसली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स, अगर दे आर विक्टिम्स ऑफ क्राइम या फिर विक्टिम्स ऑफ मास डिज़ास्टर है कुछ, तो उस टाइम पे ये काम में आता है. देन आर्कियोलॉजी ऑब्वियसली फॉर फिगरिंग आउट हाउ द फेशियल फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स वर, जैसे सेपियंस हो गए, निएंडरथाल्स, इरेक्टस, तो इनके फेशियल फीचर्स में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे, ये हम फिगर आउट कर सकते हैं. देन म्यूजियम्स में डिस्प्ले के लिए फॉर एजुकेशनल पर्पजेज FRT इज़ बीइंग यूज्ड. एंड देन फाइनली मेडिकल रिसर्च कि क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ अगर कुछ है तो उसे हम इससे रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. हमने एक करंट अफेयर्स टॉपिक से ऑलमोस्ट 3 उसके पार्ट्स पढ़ लिए हैं, एंड दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट. यू कैन कोट any example from here in your answers, and if you like this series, you can please like this video, subscribe to my channel, and also tell me कि आप किस टाइप की वीडियोस एंथ्रोपोलॉजी पे देखना पसंद करेंगे. Thank you so much and have a great day.